Hello everyone, good morning to all. So hope so preparation is going good. So welcome to current affairs series for the CLAT aspirant guys, those who are targeting the 2025. This is the part 7 and from 13 May to 19 May we will cover the important current affairs. So those who are watching, please confirm, am I audible? Please confirm guys. So then we will start. My voice is clear. If you can hear me, so please clear, and then we will start. Most important current affairs. We will cover the important. Okay, so now let's start. Basically in this session we will cover the last week most expected questions and question which is related to that particular news. So जो CLAT pattern पे, and it's also helpful for the other aspirant, those who are targeting the some other law entrances. So GK and current affairs जो area होता है basically करंट अफेयर्स तो रहेगा, एज वेल एज उससे रिलेट करके जो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस होते हैं दैट विल आल्सो वी विल कवर हियर. तो इस वे में आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों अपडेट हो जाता है. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप Telegram and WhatsApp where I will share this content, so it's easy for you for the revision, and you can also follow us on this social media platform. And वीडियो अच्छा लगे तो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना. एंड जिन लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है क्लैट के लिए इन राइट वे, सो हियर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू गाइस. सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, सो आप ऑफलाइन के लिए you can join us for this center, and if you're out of Mumbai and Maharashtra, so you can join us for the live and online class के लिए join कर सकते हो. तो for any doubt and query, these all are the number you can call to our counselor and they will guide you in a better way. So expert faculty, under the guidance of expert faculty, you can start your preparation. So now let's start the current affairs news. So first news is here, regulating the misleading advertisement in India. तो एक न्यूज जो अभी पिछले लास्ट वीक में आपने देखा रहेगा, जो पतंजलि से रिलेट करके, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेट करके काफी कुछ न्यूज में रहा, उससे रिलेट करके हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या रेगुलेटरीज बॉडी है, क्या एग्जैक्टली कंसर्न था. सो इफ एग्जाम में कुछ फॉर्म होगा तो सच टाइप ऑफ द पैसेज में भी आस्क के एक पैसेज दे देगा एंड उससे रिलेट करके बहुत सारे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी हियर, रेगुलेटिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया, जो एक काफी बर्निंग न्यूज रहा लास्ट वीक में. So in a move of the safeguard the consumers from the misleading advertisement, the Supreme Court of India has issued the directive of advertisement submit the self declaration before promoting the product in the media. तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने. So advertise are now obligated to declare that their advertisement do not deceive or deceive, it means like धोखा देना जैसा, or make the untrue statement about the product in order to prevent the misleading consumer. Advertiser intending to run the TV or must upload the declaration on the broadcast seva portal, which serve as a non-stop facility to stakeholder or request permissions, registrations and license and broadcast related activities from the Ministry of Information and Broadcasting. So कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि जो भी है सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. मिसलीड वाले जो एडवर्टाइजमेंट है, अननेसेसरी धोखा या फिर इस तरह से झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट, जैसे फेयरनेस क्रीम वाला जो एक मैटर है और पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. As well as also Supreme Court instructed the social media influencers, celebrities and public figures endorsing the product must act responsibly. Endorsers should possess the adequate knowledge about the product. It means without understanding the product, आप कोई इतने भी बड़े एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो एंड इन्फ्लुएंसर हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे, तो आप इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशंस नहीं कर सकते. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिबुक्ड द पतंजलि Ayurved for the disseminating the misleading the advertisement, leading to ban its marketing activities. The India Medical Association accused the Patanjali denigrating the allopathic medicine. तो बेसिकली जो पतंजलि ने कोरोना के पीरियड में एलोपैथिक मेडिसिन को यूजलेस और बहुत सारी चीजें एलिगेशंस लगाए थे, उसी का केस यहाँ पे चल रहा था. सो स्प्रेडिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन ड्यूरिंग द कोविड-19. तो उसी केस में जो पतंजलि को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया एंड उनके प्रोडक्ट से रिलेट करके उनको काफी बड़ा फटकार दिया गया. तो कंसर्न इज व्हाट कि ओवरऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज. ओके, नाउ सी हियर द विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
एक जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है FSSI जो कि फूड एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड मॉनिटरिंग एंड अथॉरिटी है, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो कि चेक करती है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, आपको पता होना चाहिए। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन, तो इसका ईयर इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो बाय द वे आंसर दिख रहा है, आई थिंक एनिमेशंस भूल गए हैं जो जिन लोगों ने बनाया है, तो ठीक है, आप राइट आंसर आप रिमेंबर करो, 1985 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट द कंज्यूमर, तो देखो यहाँ पे जो ऐसे तो बहुत सारे मीडिया है, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, पोस्टर एंड ट्रेंड, इसमें सबसे ज्यादा जो फूल बनाती है जो इलिटरेट कंज्यूमर्स को, सो व्हाट इज द नेम ऑफ इट, सो ब्रॉडकास्ट मीडिया आप रिमेंबर रखोगे, ओके, ब्रॉडकास्ट मीडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। Then surrogate advertising refer to, surrogate advertising refer to it means what, तो surrogate से आप surrogate वो वाला मत समझ लेना कि जो इसमें हम किसी दूसरी वेमेंस का जो बोलते हैं ना बेबी बर्न करने के लिए एक तरह से वैसे surrogate it means उधार लेते हैं, या फिर किसी दूसरे मैन का जो एक्स होता है उसके व्हाट वी कैन से एग्जैक्टली, सो दूसरे वेमेंस के थ्रू जो बेबी बर्न किया जाता है, तो उससे अलग है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है, इसका डिफिनेशंस भी आई विल एक्सप्लेन। सो एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्टली, यहाँ पे देख सकते हो, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट इज द फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजिंग विच इज यूज्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट विच आर बैंड आर लिमिटेड फॉर एडवर्टाइजिंग अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो दिस इज व्हाट एडवर्टाइजमेंट, इट्स कॉल्ड व्हाट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली जिसको एडवर्टाइज किया जाता है। In company give the false message to the customers, it is known as what, it is known as what, so obscene ads and subliminal ads, deceptions as are none of these, so इसका याद रखना deceptions, so जिसमें false deceptions इसमें like धोखा देना जैसा, the company give the false message customer, it is known as what, deceptions, okay। सो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच मे बी आस्क, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली फॉर्म होंगे। तो वन थिंग इंपॉर्टेंट कि जस्ट अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, एंड सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट कि जो इस पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है एज पर योर एग्जाम पैटर्न, ओके, अदर्स एग्जाम में भी जो पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप के, सो सारे वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करते हैं, तो अच्छे से देखो, रिवाइज करो, एंड इट्स वेरी helpful for you and for your preparations guys. So Chabar port agreement, so देखो recently Chabar port which is very important port which is in Iran और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, तो रिसेंटली ये भी न्यूज़ में रहा है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड बार पूछे गए हैं। सो रिलेटेड टू वन डे एग्जाम जिसमें होता है, जिसमें एक क्वेश्चन आते हैं, इट मीन चाबर पोर्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री, ऐसे क्वेश्चन देखे गए। सो यहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इट वाज द न्यूज, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Recently, India and Iran signed the 10-year contract for operating the Chabar port in Iran. This is long-term agreement was signed between the India Port Global Limited, IPGL and Port of the Maritime Organizations, PMO Iran, enabling the operation of the Sahib Behesti terminal. Sign of the long-term contract with the Iran is a part of the India's strategic economic visions and Central Asia beyond. Chabar is Iran only oceanic port. It is situated in the Sistan and Baluchistan provision on the Makran coast. India signed the Memorandum of Understanding MOU for the development of the Chabar port May 2015. In May 2016, India, Iran, Afghanistan signed the Trilateral Agreement established the International Transport and Transit Corridor, also known as the Chabar Agreement. China investment in the Chabar can undermine the India interest and Iran due to the strong competitors like the China. The Chabar project seek to improve the infrastructure such as the port, road and railway, requiring the significant investment, time and expertise. So basically Chabar port is a very important for India strategically economical point of view. So यहाँ पे एक agreement sign हुआ है, तो that is a very डिप्लोमेटिक विन बोल सकते हो, एक डिप्लोमेटिक सक्सेसफुल जो कि इंडिया से है, और पहले से भी साइन था। एक और भी था इसमें जो सेंट्रल एशिया में रेलवे कॉरिडोर को लेकर के, जो कि इंडिया एग्रीमेंट को साइन नहीं कर पाया था। तो रिसेंटली द चाबर पोर्ट से रिलेट करके जो न्यूज़ है, नाउ सी द क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द चाबर पोर्ट बाय इंडिया। सो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, सो रिमेंबर रखो, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो सकता है जो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। चाबर पोर्ट इज लोकेटेड इन, कहां पे एग्जैक्टली, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड बार देखा गया है। सो गल्फ ऑफ ओमान, याद रखना, देखो दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, इफ यू विल सी द मैप एंड हियर इज द चाबर पोर्ट, ओके। सो इसका जो ज्योग्राफिकल पॉइंट है एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो इसको भी आप रिमेंबर रखो।
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाबर पोर्ट। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है, ठीक है, एनिमेशन देना जो भूल गए हैं। बाय द वे देख लो, सारे ऑप्शंस आर देयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर रिवीजन। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन इन द Sistan provinces of Iran, which is true. The Chabar port is considered the gateway and golden opportunity for the trade by the India, Iran, Afghanistan with the Central Asia. This is also true. It is located in the Gulf of Oman, जो अभी हमने देखा, and only 72 किलोमीटर of the ग्वादर पोर्ट। देखो ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, ये भी रिमेंबर रखो। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, which has been developed by the China. Okay, now all are ट्रू यहाँ पे हो जाएगा। हिंदुस्तान सीपीयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड एट, हिंदुस्तान सीपीयार्ड लिमिटेड लोकेटेड एट, सो विशाखापत्तनम। याद रखना, ये भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीटेड बार पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्ट से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया हैव द फ्री ट्रेड जोन? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कंडाला पोर्ट आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप अदर्स लॉ एंट्रेंसेस टारगेट कर रहे हैं उन सब के लिए काफी फेवरेट एंड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे एससी सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन द प्ली अगेंस्ट द कोलिजन सिस्टम। अब देखो कोलिजन सिस्टम भी जो 2021 में काफी न्यूज में था, 22 में भी काफी न्यूज में रहा एंड कंटिन्यूड से रिलेट करके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। तो कोलिजन सिस्टम बेसिकली इट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, जजेस। सो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेट करके है और रिसेंटली यहाँ पे एक मैटर जो देखने को मिला था उससे रिलेट करके हम पैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड कोलिजन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो टाइम टाइम पे न्यूज में रहता है और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में मोस्टली फॉर्म होते हैं अगर से इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज। सो सी हियर व्हाई इट इज पार्ट ऑफ द न्यूज इन अ लास्ट वीक। सो रिसेंटली 2 सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस moved to the Supreme Court and alleging that Himachal Pradesh High Court collegium overlooked their merit and seniority in selection process of the judges. So overlook it means अनदेखा करना and have taken their grievances to the Supreme Court. The issue highlight the concern about the adherence to Supreme Court division process selecting the High Court judges. And previously in April, the Supreme Court registry refused to accept the petition in end of the collision system of the judicial appointment and review the National Judicial Appointment Commissions. So basically जो collision system के against ये लोग गए थे तो it was rejected. The Supreme Court has already upheld the collision system and struck down the NJAC, National Judicial Appointment Commissions, so which gave an equal role to the government in a judicial appointment. By the Constitution Bill 2015, the review plea against the judgment was also subsequently dismissed 2018. तो कंटिन्यू इसको लेकर के जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कोलिजन सिस्टम पे कि ये सिस्टम सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ ओवरलुक किया जाता है, तो उसको लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है अभी तक बहुत क्लियर है। दे आर सपोर्टिंग कि जो बेसिकली ये कोलिजन सिस्टम है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए सही है, अभी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के पार्लियामेंट में भी काफ़ी डिस्कशन चला था व्हेन द किरण रिजिजू वाज द लॉ मिनिस्टर्स। Okay, the complete excellence of executive formal judicial appointment process created the system where a few judges appoint the rest in complete the scarcity. Also, they are not accountable to any administrative body. They may lead the wrong choice of the candidate while overlooking the right candidate. So concern is what, ये काफ़ी बर्निंग इशू कंटिन्यू चल रहा है, कोलिजन सिस्टम राइट है रॉन्ग है, बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सेप्टेंस है कि अभी के लिए जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कोलिजम इज द फाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूज। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्जैक्टली कोलिजन सिस्टम। नाउ सी द क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनैगुरेटेड? तो यहाँ पे देखो एक स्टैटिक क्वेश्चन जो कि बहुत फेवरेट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रिपीटेड बार पूछा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज द चीफ करंट जस्टिस ऑफ इंडिया? इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली। सो ये भी काफी फेवरेट है, पिछले साल भी काफी रिपीटेड बार पूछा गया। ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंटिन्यू न्यूज। देख सकते हो बहुत सारे जो एसबीआई से रिलेट करके इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला केस हुआ और भी जो कंटिन्यू केस चल रहा है उसमें काफी हाईलाइटेड ही इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज। सो रिमेंबर रखो डीवाई चंद्रचूड़ इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड? ओके, सो जो नंबर ऑफ जजेस हैं उसको किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है? तो अभी के लिए 33+1 का जो रेशियो चल रहा है, 33 सीनियर जजेस एंड 1 सीजीआई। सो इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बाय द पार्लियामेंट एक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्सन टू क्वालिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस से रिलेट करके जो एजेस है ये कहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया है, ऐसा कितना मतलब क्या एज होनी चाहिए बेसिकली? सो देखो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है नो एज इज प्रेस्क्राइब्ड।
अब इसके लिए जो अलग क्राइटेरिया है कि उनका जो एक एजुकेशन है, कितने साल के लिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें मेंशन है। ओके, तो रिटायरमेंट का जो फिक्स है 65 ईयर। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया, दैट दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक क्वेश्चन। सो कितने हाई कोर्ट है बेसिकली इंडिया में? सो करंट में जो है 25, रिमेंबर रखो 25 हाई कोर्ट्स करेंटली इन इंडिया इज देयर हाई कोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द आर्टिकल 31C, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, विच इज आवर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो उसको लेकर के यहाँ पे करंटली इट वाज द पार्ट ऑफ द न्यूज। सो देख लो क्या है एग्जैक्टली। So recently a 9 judges bench of the Supreme Court has chosen to address the questions regarding the existence of Article 31C while hearing the case of decide whether the government can acquire the redistribute the private property. Article 31C protect the law enacted to ensure the social goal. The material resources of the community are the distributed to serve the common goods and Article 39B, which is a part of the DPSP. The wealth and the means the productions not concentrated, the common determine Article 39C. Article 31C protect the directive principle. Article 39B and 39C from being challenged by the right equality. Article 14 and under the Article 19 freedom of speech, right to assemble the peacefully. The Supreme Court established the basic structure doctrine asserting that certain fundamental elements of the constitutions and immune to the modification of the parliament. The court invalidated the portion of the Article 31C stating that law claiming to the based on the specific government policy can't challenge the court for failing to achieve that policy goal. So concern is what ki recently it was a part of the news which is part of your fundamental rights. So now see the questions, which questions may be asked. So Article 31C, the Indian Constitution saving the law giving the effect of certain directive principle deal with. So it's a fundamental right of the citizens. याद रखना, this is a part of the what? A fundamental right. So Article 12 to 35 is what? Our fundamental rights. Which of the following element is not added to the basic structure of the constitution by the Keswanand Bharati case? So Keswanand Bharati case में जो basic structures है, so judicial review or not added. So याद रखना, ये काफी important case है. Article 31 was inserted in the constitutions by, so यहाँ पे जो important amendment related questions mostly पूछा जाता है एग्जाम में. So 25th amendment 1971. Okay. Next है यहाँ पे, what was the exact constitutional status of India 26 January 1915? So जो इसका ये भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो सॉवरेन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना जो पॉलिटी व्हेन यू विल स्टडी. तो सॉवरेन मींस इंडिया इज अ completely independent to take any decisions are external or internal whatever. So that is called what? Sovereign nation. मतलब किसी भी एक्सटर्नल पावर या प्रेशर्स का कोई भी प्रेशर ना हो, किसी भी एक्सटर्नल कंट्री का, एक्सटर्नल पावर का, एक्सटर्नल किसी भी इंस्टीट्यूशंस का. सो नाउ द इंडिया बिकम द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इट मीन्स टू टेक द एनी डिसीजंस as per the constitutions, as per the parliament, whatever. Next, which of the following articles in the constitutions of India expectations to the fundamental right enumerated Article 14 and exceptions fundamental right enumerated on Article 14 and 19. So the Article 31A and Article 31C. So just remember रखना. Next है criminalizations of the politics. So criminalizations in the politics, recently it was the part of the news because जो साउथ इंडिया में केस देखने को मिला, रेप केस, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वुमेन्स के साथ 2800 वीडियोस जो रिवील हुए. तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इट वाज द पार्ट ऑफ द न्यूज, जो कंसर्न रेज हुआ था कि इस तरह से जो क्रिमिनलाइजेशंस इंक्रीज हो रहा है पॉलिटिक्स में, जो एमपी एमएलए है. सो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न लिया. तो उसी को रिलेट करके एक आर्टिकल्स एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था और एक इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है एज अ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में. सो देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इस पे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हियर आई फ्रेम दिस पैसेज. So just see here the criminalizations of politics. So recently case of the alleged sexual harassment of the women in various MP, MLA and government of employees sheds light on concerning the aspect of the criminalizations of the politics and ethical issue involved, like the moral responsibility, failure to uphold the professional ethics. Criminalization of the politics is when people with the criminal charges and background become the politician
and are elected to office, it can affect the basic principle of the democracy such as the fairness and elections accountability. But obviously if the such type of the people will come in the politics या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फेयर डिसीजन नहीं होगा, एक फेयर प्रैक्टिस नहीं होगा. So of the following law, according to the data of the Association of the Democratic Reform ADR, the number of candidates with the criminal charges being elected in the Parliament India has been raised since 2004. In 2019 Lok Sabha, see here, 233, which is 43% of out of 543, which is total number of seats in Lok Sabha. Member faced the criminal charges. In 2019 Lok Sabha election, 112 MP, 21% faced the serious criminal cases against them, including those of the rape, murder, attempt murder, kidnapping, criminal crime against the women. So such type of the peoples are there in the parliament. You can see 43% out of 543 total number of seats. So how they will practice the fair politics in India? The report by the National Crime Report of the Bureau revealed that convictions rate for the crime committed by the member of the parliament and state legislative was the 6% in 2019. So कहीं ना कहीं this is a very severe conditions in India in a politics, criminalization in a politics. So इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखो, इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखो. अब देखो इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है. द वोरा कमेटी ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर. तो बेसिकली वोरा कमेटी किससे रिलेट करके ये रिमेंबर रखना. सो 1993 एक तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और दिस कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट, टू स्टडी अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन है, किस टाइप के लोग हैं, कितने लोग हैं, तो ये सब सारी चीजें वोरा कमेटी ने स्टडी किया था. 1993 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया था. तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द वोरा कमेटी, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स. नेक्स्ट है यहाँ पे द रिफरेंस ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो विच स्टेटमेंट ट्रू? तो बेसिकली यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो. बाय द वे सी हियर, सो recently Supreme Court had directed the political parties to publish the online pending criminal cases against their candidate, which is true. Election Commission of India has recently recommended the political parties to not give the ticket to those with the criminal attendance. So basically यहाँ पे दोनों ट्रू है. अब यहाँ पे रिकमेंडेशन तो किया है इलेक्शन कमीशन ने और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर रहा है. बट ओवरऑल सिनेरियो इज व्हाट, ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, मोस्ट ऑफ द एमपीज एंड एमएलएज आर दे हैव क्रिमिनल चार्जेस एंड दे ऑल्सो फिर भी दे आर प्रैक्टिसिंग इन इंडियन political system, so which is not fair. The pressure group try to promote the interest of their members by exerting pressures on, so इसका correct हो जाएगा all of the above. So executive, judiciary and legislative. So यहाँ पे सबके लिए the pressures group try to promote the interest of their members by exerting the pressures on. तो basically जो pressures group होते हैं इस टाइप के जो political parties होती है सब पे ट्राई करते हैं प्रेशर करने का. जो MP MLA है, जजेस है, लेजिस्लेचर जो लॉ के लिए है, एग्जीक्यूटिव इट मीन्स जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सब पे ये लोग प्रेशर ट्राई करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय. सो इलेक्शन कमीशन से रिलेट करके ये क्वेश्चन है. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू कैन रिमेंबर. The number of the seats reserved for the scheduled caste in the Lok Sabha, so 79. This is also very important questions which may be asked. So these all are the questions guys which is very important for your exams and related जो last week से important current affairs हो सकता है. तो इस way में if you will practice week wise so काफी beneficial होगा. My suggestion is what कि just attend this session, just try to understand how the questions I am forming here. So आप भी जब भी न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट, सो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. जस्ट रीड द आर्टिकल्स एंड डेली बेसिस. सो ट्राई टू रीड द डिटेल इन्फॉर्मेशन. व्हेन यू आर रीडिंग द एनी इन्फॉर्मेशन ना, तो उसको थोड़ा डेप्थ में जाओ, अंडरस्टैंड करो, और फिर जैसे तरह से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया इस तरह के इन्फॉर्मेशन पे फोकस करो कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. ओके, सो दिस सीरीज इज बेसिकली फॉर टू improve your understanding how you will read the newspaper. किस तरह के न्यूज़ पे आपको इंपॉर्टेंस देना है, किस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है. सर मैन्यूवर के सीईटी के मॉक में जीएलसी के लिए सेफ स्कोर क्या है? सर प्लीज़ इजी है होगा ना. एक्चुअल MHCET 100% 200% ईजी होगा. एक्चुअल मॉक से ईजी होगा. इफ़ यू आर गेटिंग वॉट एवर द मार्क्स इन मैन्यूवर मॉक टेस्ट, तो उससे 10 to 15 मार्क्स more you will get in actual CET exam. This is my guarantee, Nikhil, and get and tap. ठीक है. Okay guys, so these all are the things from this week
फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ मे मंथ, फ्रॉम 13 से लेके 19 तक का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सब हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक क्लैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ अस, बिकॉज एक्सपर्ट फैकल्टी विल गाइड यू एंड काफ़ी रेलिवेंट कंटेंट यू विल गेट। ओके, एंड इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड तो ऑफलाइन के लिए जा सकते हो, इफ़ यू आर आउट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र सो ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड गुड कंटेंट, राइट शॉर्टकट मैथड, एक्सपर्ट फैकल्टी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, everything you will get. Okay, so hope so this session will be helpful for you guys. So that's it from today's session and इस वीक से इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ। ओके, सो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।